So there are different types of number systems, but commonly we use 4 different types of systems. One is decimal number system, binary number system, octal number system, hexadecimal number system. Basically number system का मतलब क्या होता है? That how to represent a number, है ना? मान लो मैंने एक नंबर रिप्रेजेंट करना है तो डिफरेंट नंबर सिस्टम में वो डिफरेंट होगा. जैसे हम कहते हैं डेसिमल्स में लिखते हैं हम. सपोज वी राइट 8 4 6 1. So how you call this number as? It is 8000 plus 400 plus 60 plus 1. ऐसे पढ़ते हैं ना आप डेसिमल सिस्टम में. So it means 8 into 10 to the power 3 plus 4 into 10 to the power 2 plus 6 into 10 to the power 1 plus 1 into 10 to the power 3. Right? तो ये हमारे पास इसमें होता है. Now this number, every digit is having an individual weight. है ना? किसी का weight 10 to 3 है, किसी का 10 to 2 है, किसी का 10 to 1 है, किसी का 10 to 0 है. तो हमने उसके weight से multiply करना है and correspondingly we have to add them up. तभी हमने निकाला 8000 plus 400 plus 60 plus 1. So अब जब हमने decimal में बात की, so in decimal we can represent any number from 0 to 9. So 0 to 9 are the valid decimal numbers. जो अब तक आप पढ़ते आए हो बचपन से, है ना, स्कूल में भी. तो using these 0 to 9 numbers, you can write any bigger number of your choice. Now, what are the numbers here? If I count starting from 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. The numbers are 10. So that's why we say it is having a base of 10. So base indicates basically the number of possible combinations or the number of possible levels that particular number system can hold. For example, if I talk about a binary, binary means either 0 or 1. है ना? Binary में या तो 0 का मतलब क्या, absent, 1 का means present, either it is there or not there. So here there are 2 only possible levels, either true or false, है ना? So it means here the base is 2. Then if I go to the octal, right? So for the octal, we are having numbers from 0 to 7. So here again the total numbers are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So if I count them, there are 80 numbers. So that's why I've written base is 8. Regarding hexadecimals, इसमें क्या होता है पता है? तो hexadecimals क्या होते हैं? It's a head of decimal. So decimal में 0 से लेकर 9 तक था हमारे पास. इसमें लिख दिया hexadecimal, means hex means 6. So we have added 6 to the decimal numbers. So it means यहाँ पर A आएगा. A means A is represented with 10, B 11, C 12, D 13, E 14, 15. तो it means hexadecimal number system में क्या करते हैं हम? 0 to 9 तक नंबर स्टेट पे आ गए. उसके बाद we use alphabets A to F. 0 to 9, then A to F. A stands for 10, B is equal to 11, C 12, D 13, E 14, F 15. Is it clear? बोलिए, ये क्लियर हो गया? एक्सेस में नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम नंबर्स को? कोई डाउट उसके अंदर तो बताओ मुझे. तो एक्सेस में नंबर्स कितने होंगे? फ्रॉम 0 to 15, है ना? So they are 16 in number, so we call its base as 16. तो आपको इस स्लाइड से एक चीज क्लियर हो जाएगी कि जो डिफरेंट नंबर सिस्टम्स होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग बेस क्या होते हैं. So for decimal number system, base is 10, for binary it's 2, for octal it's 8, and for hexadecimal it is 16. Clear है इतना पार्ट? Yes, sir. Okay. Now जो डेसिमल नंबर सिस्टम वो तो हम लिखा हुआ यूज्ड बाय ह्यूमंस, है ना? हम जनरली बात करते हैं तो हम नंबर सिर्फ डेसिमल में लेते हैं. वी नेवर टॉक इन कि ऑक्टल में बोल रहा हूं नंबर मैं बोल रहा हूं.
या आप हेक्सा में बोल रहे हो या बाइनरी में बोल रहे हो, नो, वी ऑलवेज टॉक इन वी ऑलवेज डू द कैलकुलेशन पार्ट, न्यूमेरिकल जो हम करते हैं वो हम करते हैं किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में। बाइनरी जो से certain used by the computers. Now what about octal hexadecimal? This you have to search now. Just note down this. You have to search where we use octal numbers and hexadecimal number systems. This I will ask you in the next class. Right, when you will come here in the offline mode, then I will discuss with you where these octal and hexadecimal numbers are being used. Right? इतना क्लियर है स्लाइड में? कोई डाउट किसी को इसके अंदर? बोलिए, चले आगे। Yes, sir. No doubt, sir. Okay. Now here we are writing a counting for the next three slides. There will counting का मतलब क्या है, हम लिखते हैं ना डेसिमल 0 से लेके 1 2 3 हमारी काउंटिंग चल रही है, देखो डेसिमल नंबर सिस्टम। सो इन डेसिमल नंबर सिस्टम्स आपको पता है 0 1 2 चलता है। इफ आई फिनिश विद 9 तो उसके बाद क्या होता है 10 to 19, है ना? फिर क्या होता है 20 to 29, देन 30 to 39, इस तरह चलती है काउंटिंग हमारी। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास डेसिमल में नंबर्स कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Once we are finished with all the numbers, then we append this next bit 1. Again write all the numbers 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4. When we are finished 1 line, then we take the next number 2 0 2 1 2 2. So इस तरह काउंटिंग चलती रहती है आपकी endless. Now similarly if I talk about the binary, so binary में क्या है, देखो ध्यान से, एक 0 है एक 1, दो ही नंबर पॉसिबल है बस। तो बाइनरी में अगर मुझे 2 लिखना हो तो क्या लिखूंगा मैं 2 को, this is 0 this is 1, so 2 कैसे आएगा इस केस में, it is written by 2 as 1 0। सिमिलर स्ट्रक्चर जैसे हम इसको लिखते हैं ना कि जैसे हम डेसिमल में देखा था हमने 0 से 9 तक नंबर थे हमारे पास, तो 9 तक लिखे, फिर नेक्स्ट नंबर क्या बनाया था हमने 10 तक, क्या 1 के आगे 0 लगा दिया, फिर 1 1 1 1 2 1 3 1 4। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा 0 1 2 के लिए क्या लिखेंगे 1 0, और 3 के लिए क्या आएगा 1 1 1 1, 4 के लिए क्या आएगा 1 0 0 1 0 0, 5 के लिए 1 0 1। so like this it will go. Similarly if I talk about for the octal number system, octal में मैंने क्या बताया, we are having number from 0 to 7. Now how to write 8 in octal? Okay, you have exhausted all the octal numbers, let's say 4 5 6 7. Now you want to write 8, तो यहाँ क्या लिखूं मैं ऊपर, बोलो शाबाश। The similar way we have done for the decimal number system ना, पहले सारे जो नंबर से सब एग्जॉस्ट हो गए मेरे 0 से 9 तक, देन नेक्स्ट नंबर कैसे बनाया मैंने 1 with 0 1 0 1 1 1 2 like this। तो यहाँ पर कैसा होगा 7 के बाद क्या आएगा 0. only 0। 1 यहाँ 0. 1 0 ना, Yes, sir. then 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, फिर क्या होगा 2 0. 2 Yes, 0. 2 1, it will go up to 2 7, फिर क्या होगा 3 0. and so on, है ना? तो एक बात समझ में आ गई ना। अब जब ये सारे के सारे मान लो आपने 7 0 से लेकर 7 7 तक लिख दिए, उसके बाद क्या होगा 1 3 digits. 0 1. 1 1 0 1 0 0 1 Yes, 0 0 very good, 1 0 very 0 then 1. वेरी गुड। सो इन द सिमिलर वे से हम कहते हैं डेसिमल में 99 खत्म हो गया तो हम कहते हैं 1 0 0 कर दो 100। सो ऑक्टल में भी क्या हुआ, when once we use 77, that is the last number, then we have go to for 1 0 0। वही काउंटिंग है ऑक्टल की। Similarly, let me erase this first here.
Let me write down for the hexadecimal. For hexadecimal 0, 1, 2 up to 9. Then I write A, B, C, D, E, F. So F is what my 15. अब F के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा? How to write 16 in hexadecimal? Similar way कि हमने पहले, हाँ बोल बोल शाबाश। काउंटिंग में नेक्स्ट नंबर क्या आएगा F के बाद? देखो हमने क्या किया, हमने ये स्ट्रेटजी फॉलो करी है कि जो भी नंबर सिस्टम है ना, उसमें काउंटिंग लिख रहे हैं हम सिर्फ अभी। तो काउंटिंग का प्रोसीजर हमें पता है क्या होता है कि जैसे डेसिमल में होता है 0 से 9 तक नंबर थे, उसके बाद 1 लगाओ, 10 11 12 ऐसे बने। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हेक्साडेसिमल में हमारे पास टोटल 16 नंबर है फ्रॉम 0 टू F, है ना। तो F के बाद नेक्स्ट काउंटिंग में क्या आएगा, बोलो। सर 100 आएगा। 10 10 then 11 12 13 so on 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F। अब 1F के बाद क्या आएगा, 20 यस। तो 20 से चलता रहेगा कब तक, 2F तक, फिर 30 3F सो ऑन। लेट्स से मेरे पास नंबर आ गया FF। अब क्या होगा नेक्स्ट नंबर, 3 में आएगा, क्या आएगा नंबर बताओ, 100 गॉट इट। तो कहने का मतलब क्या है, वंस द 1 digit is exhausted move to 2 digit, once 2 digit and is exhausted move to 3 digit, once 3 digit is exhausted move to 4 digit, like you do in the decimal number system, exactly same technique वही है, फर्क क्या है, the numbers amount of numbers are now changing। in decimal में हमारे पास 0 से 9 तक थे, octal में 0 से 7 तक आ गया, binary में हमारे पास 0 to 2 1 आ गया, and then for the case of your hexadecimal we are having 0 to F। Is this thing clear to everyone? काउंटिंग, अभी हमने सिर्फ काउंटिंग लिखी है, कैसे कन्वर्ट करना है वो नहीं देखा अभी हमने, सिर्फ काउंटिंग देखी है सिर्फ हमने। चलें आगे, क्लियर है ये चीज काउंटिंग? यस सर। यस सर। ओके, ये देख भी लो आपके सामने आ भी रहा स्क्रीन के ऊपर, है ना। अब इसमें एक चीज आपको और सिखा देते हैं। अब मान लो मेरे को ये 13 है, सपोज करो 13 का बाइनरी लिखना है, तो आप कोई सिंपल शॉर्टकट सिखा रहा हूं मैं, क्या याद रखो, 8421। इसका मतलब क्या, ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3। अब मुझे नंबर लिखना 13। अब 13 देखो इन 8421 को यूज कर कौन से नंबर्स के ऐड करने से बनेगा, एट फोर वन। तो जो ऐड करने से बनेगा उनके बिट्स को 1 कर दो, बाकी जो बच गया उसको 0 कर दो। गॉट इट? यस सर। यस सर। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज द नंबर इज 10, तो 10 कैसे बनेगा, 82 बाकी 0 होगा। लेट्स से मुझे नंबर बनाना है 15, 8421। लेट्स से मुझे नंबर बनाना है 17, तो क्या करूं मैं अब, 8421 की तो लिमिटेशन कहां तक है, ओनली अप टू 15। तो यहां पर आगे क्या बनेगा, 2 की पावर 4, ये 16 आ जाएगा। अब क्या बनेगा नंबर, 10001। गॉट इट? जैसे हम डेसिमल में करते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ ऐसे करते हैं ना, तो ऐसे ही जब और आगे जाना तो और बढ़ा लो। तो ये शॉर्टकट है, आपको जैसे एमसीक्यू में कोई कन्वर्जन आ गई तो आप स्टेटमेंट निकाल सकते हो इससे।
बजाय की डिवाइड करने के, वो भी सिखाता था तरीका आपको। ये शॉर्टकट है कि आपको कोई भी नंबर, जनरली 4 डिजिट में हमें चाहिए होता है कि नंबर रिप्रेजेंट करना है, हमने नंबर 9 रखना है, तो 9 कैसे होगा, 8 + 1, ओके, तो 1001 नीचे आ गया। तो 8421 माइंड में रखो, दिस इज वन ऑफ द नंबर सिस्टम जो यूज करते हैं हम। क्लियर है कंसेप्ट ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो आगे ये काउंटिंग चल रही है वही सेम। यहाँ पे से देखो 21 आ गया, तो 21 आ गया तो आपके माइंड में आएगा 16 8 4 2 1, तो 21 माइनस 16 + 4 20 + 1 आता है। देखो ये स्मॉल ट्रिक्स बड़े हेल्प करते हैं आपको जब एग्जाम में आपको सॉल्व करते हैं, आपको पता हो कि हाँ बाइनरी कैसे निकालना है, ये इसका आएगा बाइनरी। क्लियर है? ये निकाल लोगे जब दिक्कत आएगी कभी, है ना? Yes, sir. चलो अब ये काउंटिंग तो होगी हमारी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब कोई भी नंबर सिस्टम आपको है, आप किसी भी नंबर सिस्टम में किसी नंबर सिस्टम में स्विच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि मेरे को ना बाइनरी में नंबर गिवन था एंड आई वांट टू मूव फ्रॉम लेट्स से बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। आई कैन आल्सो गो फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल। सो किसी भी नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर पे आप स्विच कर सकते हो वेरी इजीली। तो आज हमने ये सीखना है कि कैसे स्विच करते हैं। तो लेट्स से टेक एग्जांपल, सपोज आपको ये नंबर गिवन है डेसिमल में, लेट्स से नंबर इज 345। अब जब नंबर लिखना चाहिए डेसिमल में, तो हाउ टू राइट दिस, तो उसका तरीका क्या समझो कि अगर डेसिमल में लिखना है हमको नंबर को, तो जो भी नंबर लिखा होगा उसको आगे मैं पहले ब्रैकेट लगाऊंगा और उसके सबस्क्रिप्ट में क्या लिखूंगा, 10। तो तरीका क्या है कि जो भी नंबर आपको दिया हुआ, जिस नंबर सिस्टम में दिया हुआ है, उसको पहले ब्रैकेट में बनाओ और लास्ट में नीचे सबस्क्रिप्ट में उसका बेस लिखो। फॉर एग्जांपल ऑक्टल में अगर नंबर होता, लेट्स से नंबर 125, तो ये क्या होता, बेस 8। ये मैं एग्जांपल, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ कि हाउ टू राइट द नंबर इन ऑक्टल और डेसिमल। अब हम लेते हैं केस कि मान लो मुझे डेसिमल नंबर गिवन है एंड आई वांट टू कन्वर्ट इट इक्विवेलेंट लेट्स से ऑक्टल। पहले मैं इसको इरेज करता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेट मी इरेज दिस नंबर फॉर अ मोमेंट एंड द क्वेश्चन इज दैट you have to convert 345 into equivalent octal number। या आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज इट्स इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर, या पूछ सकते हैं इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी। ये 3 ऑप्शन होते हैं, है ना? तो हम तीनों सीखेंगे वन बाय वन। एक मैं बता दूंगा आपको, बाकी तो निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है? सो लेट मी टेक दिस बाइनरी फर्स्ट। तो तरीका क्या है कि जब भी मैंने डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी और पे जाना है, ऑक्टल में जाना है या बाइनरी में जाना है या हेक्साडेसिमल में जाना है, तो तरीका क्या है, जो डेसिमल नंबर गिवन है उसको लिखो पहले, जैसे 345 है, फिर उसको डिवाइड करो। डिवाइड किससे करना है, जिस पे जाना है ना अपने, उसके बेस से। जैसे बाइनरी में जाना है तो 2 से डिवाइड करूंगा, ऑक्टल में जाना है तो 8 से डिवाइड करूंगा, हेक्सा में जाना है तो 16 से डिवाइड करूंगा। सो लेट मी गिव यू फॉर द बाइनरी। सो बाइनरी से जाना तो 2 से डिवाइड करूंगा पहले इसको मैं, और जब डिवाइड करूंगा जो भी रिमाइंडर आएगा वो यहाँ लिखना है। तो बाइनरी में जो डिवाइड कर 2 से, तो क्या आएगा, 2 1 से 2 हियर, 14 7 2, व्हाट इज द रिमाइंडर, 1. 1. I should write remainder at the right hand side. Again divide with 2. 2 8 is 16, 6 is 12, remainder 0. 0. then again divide with 2. 2 4 is 8, 3 remainder 0. again divide with 2. 2 2 is 4, 1 remainder 1. 1. Again divide with 2. 2 1 is 2, 0 remainder 1. 1. Again divide with 2. 2 5 is 10, remainder 0. 0. Again divide with 2. 4 remainder 1. again divide with 2. 2 1 is 2, remainder 0. Again divide with 2. 2 is 0, remainder 0 1 1, remainder 0 क्यों, 1 1 है ना? तो ये आ गया। अब आपने रीड कैसे करना है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप।
तो बॉटम से स्टार्ट करो 1 0 1 0 1 1 0 0 1. So this is the equivalent of a decimal number 345 in binary. I again repeat. ये देखो ध्यान से, हमने क्या किया, डेसिमल में हमें गिवन था नंबर और आपसे पूछा गया कि यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ इक्विवेलेंट बाइनरी. तो हमने क्या किया, उसको 2 से डिवाइड किया 1 by 1 और रिमाइंडर लिखते रहे. ये कब तक करना है, जब तक आपका यहाँ पर 0 नहीं आया था तब तक आप डिवाइड करते रहोगे. फिर रीड कैसे करना है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप. इज दिस पोर्शन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Now in the similar way, can you give me the octal equivalent of 345? करो ट्राई, शाबाश. करना क्या आपने, 345 लोगे और किससे डिवाइड करोगे, 8. 8 से. करो शाबाश डिवाइड. बोलो, मैं कर लिखता हूँ यहाँ पर, आप बोलते जाओ. बोलो मनिंदर, आप बोलो. 22. Yes, sir. आप बोलो, आप बोलो क्या आएगा यहाँ पर. Sir, 8 4 is 32 हाँ, देन minus 25. Sir, 3 पे 24. रिमाइंडर 1. 1. देन Sir, 8 5 is 40. रिमाइंडर 3. 3. देन 8. Remainder 3. यहाँ 0 and 0 remainder. 0 0. 5. So what is the answer? 531. 531. It means इसके इक्विवेलेंट क्या है यहाँ पर, ये ऑक्टल में 531. 31. चलो अब इसी पैरेलल लाइंस में मुझे हेक्सामेन निकाल के दिखाओ इसका. तो क्या करेंगे, 345 को किससे डिवाइड करेंगे, 16. 16 से. चलो श्रेया आप बताओ. Yes, sir. बोलो क्या आएगा यहाँ पर. So 2 times 32, 25, 1, रिमाइंडर 9, 9. देन 1 time, remainder 5, देन 16, 0, remainder 1, क्या आ गया, 115, 159. 159 in. Is this thing clear to everyone? कि डेसिमल से कभी भी किसी भी नंबर पे जाना है हमें, ऑक्टल में जाना है, बाइनरी में जाना है, हेक्सा में जाना है, तो क्या थंब रूल है हमारे पास कि we have to divide with the corresponding bases and note down the remainder at the right hand side, and at the end we have to read from the bottom to top, and at the end we need to write like this in the parenthesis what is the base और किस में कन्वर्ट करा आपने, है ना. तो ये बताना है आपने. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपने बेस नहीं लिखा, सिंपल है कि 531, नो इट्स रॉन्ग. यू हैव टू टेल कि 531 ऑक्टल में है, किस में है, अभी हमें क्या पता, है ना. तो आपको ये बताना जरूर है कि किस में आए. और ये नंबर सिस्टम की कन्वर्जन 101% आपको हर जगह मिलती ही है, हर एग्जाम में. तो इसलिए इसको गलत बिल्कुल नहीं करना. इतना पार्ट क्लियर होगा सबको. डेसिमल से हम हर एक नंबर सिस्टम में चलेगी. ठीक है, चलें आगे. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये इसने एग्जांपल दे रखा है, इसने दे रखा है 25 नंबर. 25 दे रखा है विद बेस 10. इसका इक्विवेलेंट बाइनरी निकाल लिया इसने. तो वही अब जो हमने एक आपको शॉर्टकट सिखाया था ना पहले मैंने 8421 वाला, उससे निकल जाएगा. लेकिन अगर आपको पूरा सॉल्व करना तो 25 को 2 से डिवाइड करो, फिर 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 2 से डिवाइड करो. सो 1 1 0 0 1. और जो शॉर्टकट सिखाया था मैंने वो क्या था, 16 8 4 2 1. तो 25 चाहिए, 16 plus 8 24 plus 1 25. Clear? So depending on your requirement you can use any of the methods. ठीक है. और ये
Yes, sir. 31 निकाला, ये भी चेक कर लेते हैं। 25 को हमने Thirty- 8 से डिवाइड किया, 8 से 24, रिमाइंडर 1, 1 8 0 0, रिमाइंडर 3, 31 आ गया। ये भी ठीक है। 16 पे करना तो 60 से डिवाइड करो, 16 1 16, 9, 16 0 1, so this is also correct. This again helps you to get the knowledge key from decimal. If I want to go to any other number system, I have to divide with the corresponding bases and note down the remainders. At the end, I need to read from the bottom to top. Clear a point? yes sir Yes, sir. अभी करते हैं। अब मैं आपको क्या कहूंगा कि मान लो बाइनरी में नंबर गिवन था, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है आपने, या मान लो ऑक्टल में गिवन था, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, हेक्सा में गिवन तो तब करना है। तो किसी भी नंबर सिस्टम से वापस डेसिमल में आना तो क्या करना है, वो मैं सिखाता हूँ आपको। तो उसका तरीका बहुत सिंपल है। लेट्स टेक अ नंबर ले लेते हैं पहले। सपोज बाइनरी नंबर गिवन है, बाइनरी नंबर का बेस 2 है, तो आइदर 0 और 1 की फॉर्म में होगा, है ना। सो कोई नंबर बोलो जरा, शाबाश योगेश, हाँ बोलो कोई नंबर बोलो, योगेश बोलो नंबर, शाबाश। 530 हाँ? 530 बाइनरी में, इन बाइनरी, हाँ, ओके ओके, 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1, दैट्स इट। थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा ये नंबर 0 1 0 1 1। चलो ठीक है, ये नंबर गिवन है मान लो हमारे बाइनरी में। अब मुझे निकालना क्या है, इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल। ठीक है, तो अब तरीका क्या है, हर एक जो बिट है ना हमारे पास, इसको बिट्स बोलते हैं डिफरेंट लोकेशंस को, इसकी अपनी कुछ वेट है। जैसे अगर आपको याद हो, जब आप डेसिमल पढ़ते हो तो आप लिखते हैं HTO, है ना, इसका वेट 10⁻0 है, ये 10⁻1 है, ये 10⁻2 है, 1000 में 10⁻3 है, ऐसे पढ़ते हैं ना डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो लाइकवाइज इन बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, इसकी पावर 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। तो इफ आई मूव फ्रॉम द राइट साइड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो क्या हो रहा है कि जो वेट है वो बढ़ रहा है ना, यस और नो। Yes. इट मींस जो राइट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट बिट होता है, इसको पता क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस बिट एज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और राइट मोस्ट को क्या बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लेट मी राइट हियर, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे, तो क्या करो, जो उसकी वैल्यू है इनटू इट्स वेट। जैसे यहाँ पर 0 के कहाँ आ रहा है, 2 की पावर 8 में आ रहा है, तो क्या लिखूंगा, 0 इंटू 2 टू पावर 8 प्लस, बोलो आगे क्या आएगा, 1 इंटू 7 7 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू। तो इसको सॉल्व करो कितना बनता है, ये 0 हो गया, ये 2 की पावर 7 कितना होता है, 128 128 प्लस 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 64 2 की पावर 5, 32 32 2 की पावर 4 आएगा, नहीं सर 0 हो 2 की गया, पावर 3 2 की पावर 8 8 हो गया, ये 3, देन 2 0, देन प्लस 2 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा, काउंट करो, 235 2, 35 तो ये मेरा किस में आ गया, 10। तो मींस जो आप लोगों ने नंबर दिया था, ये इसका इक्विवेलेंट 235 है इन डेसिमल। इज इट क्लियर, एनी डाउट इन दिस? No, sir. Okay, now let me give you one octal number. Let me erase this. Now suppose I am given octal number 537.
and I want its equivalent decimal. तो क्या करेंगे हम? यहाँ पर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे है ना? यहाँ वेट क्या होंगे बताओ? इसका वेट 8 क्या की होगा? पावर 8 की पावर Yes. 0 वेरी गुड. इसका 1 8 की पावर 1 की पावर 8 की पावर 2 तो इसको कैसे लिखेंगे? 5 into 8 की पावर 2 प्लस 3 into 8 की पावर 1 प्लस 7 into 8 की पावर 0. ये कितना होगा निकालो? 64 into 5 निकालो कितना होता है? 320 20. प्लस 8 3 is 24 प्लस 7 तो कितना होगा ये? 351. तो इट मींस जो नंबर मेरा ऑक्टल में 537 था वो डेसिमल में आके क्या बन गया? 35. इज इट क्लियर? Yes sir. अब एक और एग्जांपल लेते हैं हेक्साडेसिमल का. सपोज नंबर गिवन है आपको, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट. What is not using? So let me know. We'll write in the left side. Suppose number given to you is 5 A C F. I want equivalent decimal. क्या करेंगे? F to the power 16 raised to power 0. Yes. फिर 16 की पावर 1. 1, 16 16 की पावर 2, 16 की 16 पावर. अब क्या बनेगी इक्वेशन? 5 5 into 16 की power 3 plus plus A into 10 is okay. Let me write here. A is 10 into 16 की Yes. पावर 2 plus C कितना होता है? 12 12. 16 की पावर 1 plus F कितना होता है? 15 तो 16 की into पावर 2. 16. निकालो कितना आता है? Two three two three three. 233. सबका ही यार चेक करो. सो मेरा 23247 आया. 23247. और कोई? सर यही आ रहा है 23247. यार जिसका पहले ये है चेक करो. क्या चीज छोड़ी है? Two three two four seven. 23247. ठीक है. तो अब आप किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में आ जाओगे आराम से. Yes sir. बाय मल्टीप्लाई. तो अब दिमाग में क्या रखना है कि कोई भी नंबर सिस्टम की हो ना, अगर डेसिमल में जाना है मेरे को तो कॉरेस्पॉन्डिंग उससे मेरे को वेट से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. और अगर डेसिमल से मुझे जाना है किसी नंबर सिस्टम में तो क्या करना है? उसके वेट से, उसके बेस से डिवाइड करना है. क्लियर हो गया कंसेप्ट? Yes sir. चलो अब आगे चलते हैं. ये जो मैथड बता रखा है जो आपको ऑलरेडी पहले बता दिया मैंने, है ना. देखो ये एग्जांपल है 10 10 10 10 11. वही 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 43. ठीक है ना. Yes sir. नाउ ऑक्टल भी सिखा दिया मैंने आपको. एग्जांपल कर देखो 724 खुद निकालो, चेक करते हैं. 724 का निकालो.
अगर ऑक्टल में गिवन है तो डेसिमल में कितना आएगा? आंसर तो हमें निकाल दे। Four 468. 468. Yes, sir. 468. Okay, let me check. Perfectly fine. ठीक है, अब आगे चलते हैं हेक्साडेसिमल पे। हेक्सा वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स से एबीसी। तो उसका कितना आएगा इक्विवेलेंट डेसिमल? किसी बच्चे को नहीं आ रहा हो तो प्लीज आस्क, नॉट हेजिटेट, क्योंकि इसका भी एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। हर एक एग्जाम में मिलता है आपको। एंट्रेंस एग्जाम में बैठोगे, कहीं बैठोगे, प्लेसमेंट बैठोगे, हर जगह मिलता है आपको एग्जाम। 740. 740। नहीं सर, नहीं निकाल। ओके, गलत हो गया। 8 से कर दिया सर। 2748 2748 सबका ही आ रहा है? yes चलो चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, परफेक्टली फाइन। तो इट मींस आपको आ भी गया, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली हमने। लेकिन ये याद रखना, इसकी आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अभी तो आपको सिर्फ मैंने वो वाला पार्ट दिया है कि डेसिमल से नंबर सिस्टम कहीं और गए हो या वापस किसी और से डेसिमल में आए हो, ओनली फॉर द इंटीजर पार्ट। आई हैव नॉट कंसीडर टिल नाउ द फ्रैक्शनल पार्ट, है ना? वो भी करेंगे धीरे धीरे, पहले ही करके चलते हैं। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इज इफ सपोज आई वांट टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। ये तो हमने कर लिया, इसको छोड़ो, दिस इज रेपिटेशन। अब मान लो एक क्वेश्चन आता है कि आपको ऑक्टल से बाइनरी में करना है। लेट मी गिव यू अ प्रॉब्लम। सपोज नंबर गिवन टू यू इज 237. कैन यू गिव मी इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी? पहले तो मुझे बताओ तरीका क्या निकालने का। तो पहले डेसिमल में करके उसको बाइनरी में कर देंगे। वेरी गुड, करो शाबाश, करो शाबाश। लेट मी चेक। डेसिमल में आ गया? Yes, sir. कितना है डेसिमल में? 159. 159। 59. ओके, अब इसका निकालो बाइनरी, फिर कितना आता है? So 100 फिर 1111 कितने वन है? 5 4 के 5? 5. 1005 वन आ गए हैं। सबका ही यार? यस सर। किसी का नहीं आया तो बताओ मुझे पहले, मैं भी करके दिखाता हूँ यहाँ पर। सबका आ गया ये? Yes, sir. ओके, मैं अब आपको एक शॉर्टकट सिखाऊं। आपने पहले ऑक्टल से डेसिमल में गए, फिर बाइनरी पे गए, लंबा हुआ ना प्रोसेस। हाँ, yes, sir. मान लो ये एमसीक्यू में आ गया तो इधर टाइम खराब करोगे। तो शॉर्टकट क्या है, यहाँ से देखो। अगर ऑक्टल में नंबर गिवन है और बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मींस बेस 8 से बेस 2 पे जाना है आपने, है ना? Yes, sir. तो ऑक्टल में 8 का मतलब 2 की पावर 3 हाँ. और बाइनरी में 2 की पावर 1। ठीक है,
तो आपने क्या करना है कि जो ऑक्टल नंबर है उसको 3 बिट में लिखना है, 3 बिट बाइनरी में। क्या मतलब है, अगर मैं 7 का बाइनरी लिखूं 3 बिट्स में तो क्या आएगा, 111. if I write 3 in binary, One zero 011. 0 1 1. 1 If I write 2, 1 10 0 0 1 1 0 0 1 0 001. 0 0 1 0 0 1 010 01. 010 0 1 0 भाई, हाँ। याद रखना 8 4 2 1 2 लिखना है तो ये वाला 1 आएगा ना, बाकी तो 0 आएंगे। और 3 बिट लिख रहा हूँ खाली, तो 0 1 0 आ गया। अब ये 2 3 7 थे ना, इनको इकट्ठा कर दो। पहले 2 लिखो, 2 क्या है 0 1 0, 3 क्या है 0 1 1, 7 क्या है, ये बन गया, देखो वही नंबर है, चेक करो। Yes, sir. शॉर्टकट है कितना अच्छा, देखो। Yes, sir. तो आप बिना कोई कन्वर्जन करे, ना डेसिमल में जाने की जरूरत है, ना डिवाइड करने की जरूरत है, तो आप शॉर्टकट से सीधा वहीं पहुंच गए। क्लियर है? Yes, sir. लेट मी गिव यू वन प्रॉब्लम फॉर। सर हाँ जी, सर बोलो। ये 3 बिट तक ही क्यों निकालना था? क्योंकि आपका जो ये है ना ऑक्टल, उसकी 2 की पावर 3 है, तो वन नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड विद 3 बिट्स इन बाइनरी। अच्छा सर, अगर ये 4 डिजिट होता तो हम 4 तो तक हेक्सा में निकाल। होता Hexa में हम 4 bit. नहीं, 3 इसको मत काउंट करो, 2 3 7 3 है ये नहीं। लेट मी गिव ए नंबर, सपोज नंबर आपका है 4 2 7 6 5 ऑक्टल में। अब मैंने बोला इसका निकालो जी आप बाइनरी के अंदर, तो इसमें क्या है कि ये 5 बिट्स है, नहीं, जो ऑक्टल है उसमें रिप्रेजेंटेशन किसकी है, 3 बिट की रिप्रेजेंटेशन एक नंबर की। अच्छा सर, आप क्या मतलब वो करोगे, 2 3 8 है, इसलिए मतलब वो नीचे हाँ हाँ ऑक्टल में हाँ रिप्रेजेंट। हाँ, राइट राइट। तो 4 ठीक का है। मतलब क्या आएगा यहाँ पर 1 1 0 0 0। 0 2 का मतलब 0 1 0 7 का मतलब 1 1 1 1. 1 1 6 का मतलब 110 0 5 का मतलब 101। 0 1. आंसर आ गया, बस Yes. कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस ये जो शॉर्टकट सिखाया मैंने आपको, इसको आपको सीधा आंसर ही लिखोगे आप, इसमें कुछ करना नहीं है इसमें, Yes, sir. ठीक है। लेट मी गिव यू वन प्रॉब्लम नाउ। लेट्स से नंबर और प्रैक्टिस करते हैं। चलो ऑक्टल हो गया, हम हेक्सा की बात करते हैं। लेट्स से हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाना है। सपोज नंबर गिवन टू यू इज ए बी सी, लिया था ना मतलब पहले हमने, एबीसी ले लेते यस हैं सर। नंबर। तो एबीसी से बाइनरी में जाना तो क्या करें, एबीसी का आपने 4 पहले बिट्स निकाला में था, करेंगे। डेसिमल निकाला था, डेसिमल से बाइनरी में आए थे, है ना। हाँ, और शॉर्टकट बना लोगे अब अपने आप, क्या बनेगा इसका, 4 बिट्स में नंबर। 4 एग्जैक्टली, bit में हम लिखेंगे परफेक्टली फाइन। तो ए क्या होता है हमारा 10 10, 10 कैसे लिखेंगे बाइनरी में 4 बिट में, रिकॉल 8 4 2 1। 1 0 1 0 1010 1 0 1 0 बी क्या होगा 1 0 11 0 1 1 1 0 1 1। सी क्या होगा 12। 1 0 0 1 1 0 1 0. 1. आंसर आ गया। Yes, sir. देयर इज नो नीड टू गो फर्स्ट फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइ डेसिमल, फिर डेसिमल से बाइनरी, पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे, क्या करना है उसको हटाओ, सिंपल स्टेप में बता। क्लियर है? Yes, sir. ओके, ये क्वेश्चन करो फिर। 705 ऑक्टल में गिवन है आपको, आपने इसका बाइनरी निकालना है।
So 1 सर 1 1110101 1 10101 0101 सबका ही आ रहा है? सर Yes. अगर वो 0 है मतलब सर अगर 0 को भी 3 बिट में करेंगे तो 0 बिल्कुल 0 0 हो बिल्कुल। जाएगा। 0 का नहीं यस सर है। वो सेंटर वाला 0 3 हाँ बार ये 0 गलत कर दिया ना फिर। 3 बार हमने आया। देखो जब भी ऑक्टल में कोई भी डिजिट गिवन है उसको बाइनरी में लिख रहे हैं तो उसके इक्वलेंट 3 डिजिट आने ही आने हैं, चाहे 0 ही ना हो, कितने Yes. 0 क्यों ना हो। तो क्या बनेगा नंबर? 1 1 1 1 111000101 101. दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। Yes sir. और करने के बाद ना ये चीज जरूर लिखनी है ऐसे एंड में आंसर कि ये मेरे को नंबर गिवन था, ब्रैकेट में डाला करो यहाँ पर नंबर बेस 8 में गिवन था और मैंने निकाला नंबर बेस 2 में। इट गिव्स यू योर क्लैरिटी, यू आल्सो क्लैरिटी एंड द चेकर आल्सो की क्लैरिटी कि यहाँ भी वो आप किससे किस में नोट कर रहे हो। ठीक, हेक्साडेसिमल बाइनरी भी हमने कर लिया। चलो इसका एग्जांपल करते हैं, ये निकालो 10AF। AF का इक्विवेलेंट बाइनरी निकालो। अब तो आप सीधा आंसर ही बोलो इसका। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 कितने जीरो लगाने हैं? 4 0 ओके देन 1 0 1 0 देन 1 1 0 1. सबका ही आ रहा है? सर 1 ही 4 टाइम होगा कहाँ पर? स्टार्टिंग वाला 0 0 0 1 होगा। 1 से पहले 3 0 पे आएंगे सर। यस अच्छे चलो Yes, बाकी sir. ठीक है। यस सर 1 से पहले 0 लिखते हैं। चलो कोई भी लगाओ या ना लगाओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी बेटे तो है ही नहीं। वही तो. अब ठीक है बाकी ये Yes sir. गलती है इसमें, ढूंढो क्या गलती है। हाँ जी सर लास्ट में 419 है। यस, इसको आपने, ये तो आपने डी लिखा दिया मुझे, सॉरी ई लिखा दिया। Okay. Yes sir. Yes sir. इट शुड बी 1 1. ऑल वंस। अब गेट है Yes sir. ठीक है। तो अब ये स्टार्टिंग के 3 zeros आप लगाओगे तब भी ठीक है, नहीं लगाओगे तब भी ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट कैरिंग एनी वेट। जंजाल सर। हाँ जी सर, हो गया सर, डन। सर मैं भी ले लूं क्लास? हाँ बिल्कुल सर। ठीक है तो सर, ठीक है ठीक है। स्टूडेंट्स, ओके थैंक यू। Thank you sir. थैंक यू सर। ओके बच्चे। थैंक यू सर।